In India, critics say bulldozers are increasingly being used as weapons against some of the country's poorest citizens. हमारे घर को जैसे माचिस का घर हो इस तरह से तोड़ रहे। Many demolitions target the country's Muslim minority. State governments and their supporters say they're removing illegal encroachments on public land. जो समाज अतिक्रमण करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा. But activists say the demolitions are being used to create terror and erase Muslims from India's landscape. तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि किसी बड़े लोग के घर पे बुलडोजर घुमा के बताओ तो मैं मानूं कि तुम्हारा बुलडोजर अच्छा है. 101 East investigates if India's bulldozers are delivering justice or demolishing it. Dawn in the western Indian city of Ahmedabad. Authorities are assembling a battalion of bulldozers to carry out the largest demolition in the city's history. These bulldozers will target the homes of thousands of Muslim and lower caste Hindu families who've been living illegally on public land around Chandola Lake for decades. The demolition comes amid heightened security concerns, a week after a deadly attack on tourists in Kashmir. Authorities say Chandola Lake residents are a threat because a small minority of them are illegal Bangladeshi immigrants. देखिए, देश हित में एक तरफ सेना सरहद पर स्ट्राइक करती है तो देश के भीतर रहने वाले घुसपैठियों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर फोर्स अटैक करती है. यही गुजरात में हुआ, जहां दादा की फोर्स ने अहमदाबाद में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 बुलडोजर से मिनी बांग्लादेश कहे जाने वाले इलाके पर आक्रमण कर दिया. Most residents say they were given only a few hours' notice about the impending demolitions. Thousands of police officers have been called in to keep the peace, though few arrangements have been made to help the thousands of families who are soon to become homeless. Even though most people here have valid government-sanctioned ID cards that prove their residence, they are shunted off the land without ceremony. The rumble of the bulldozers gets closer. A last-minute attempt by residents to stop the demolition has been turned down by Gujarat's highest court, which says it can do little to help people who are encroaching on this lake bed, even though such encroachments have existed for decades across the city. Bulldozers ripped through the makeshift structures. In just a few hours, nearly 4,000 buildings, a mix of shops and homes, are destroyed. Government ministers responsible for the demolition post triumphant videos hailing how efficiently they have cleared the slum. ये ऐतिहासिक काम पूरी तरह से मानवता के मद्देनजर रख के ये काम को पूर्ण करके जो तालाब की जगह जो 1.25 लाख मीटर से ज्यादा जगह ये गैरकानूनी बांग्लादेशियों ने
एंक्रोच की थी वो पूरी खाली करवाई गई है, ये काम चालू है। About 180 Bangladeshi nationals were arrested, but the overwhelming majority of the residents affected by the demolitions here are Indian Muslims, like Wahida Begum and her family. For 3 decades, she ran a small grocery shop next to her home, both of which have been demolished. माचिस की डब्बी को फेंकते नहीं यूं करके तोड़ के, इस तरह से हमारे घर तोड़े जा रहे। हमारी जिंदगी की कमाई थी, 1 मिनट में रमण भमण करके चले गए। She says instead of offering aid, government officials have told families they have to pay a fee to apply for resettlement. अभी हम ये माहौल में हमारे पेट का पूरा करे, हम के घर लेवे छत लेवे, कि हम वहाँ फॉर्म के पैसे भरने जावे 8,000 रुपया। 8,000 बहुत बड़ी गरीब के लिए कीमत होती है, बहुत बड़ी होती है। उसकी 1 महीने की पगार होती है 8, 10, 12, 15। The families of Chandola Lake prepare for their first night without shelter. Some have found refuge with relatives, but many of them will sleep amongst the ruins of what were their homes for generations. More than 6,000 Muslim men from across the neighborhood and beyond have been arrested and taken in for questioning. The next morning, many residents are still desperately searching for their loved ones, some of whom were picked up by police in the days before the demolition began. हमने क्या गुनाह करेंगे मिलके सबर, रोना नहीं है। Zora Chipa works with a small housing rights group in Ahmedabad, which is one of the few civil society organizations helping the residents of Chandola Lake. आज शनिवार के दिन पकड़ के ले गया मेरा लड़का को, पूछने जाता है तो बोलता है इधर कोई नहीं है, ये नाम का लड़का नहीं है, मेरा लड़का को चाहिए नहीं, मेरा जान निकाल दूं। पुरावा तो सब है ना तुम्हारे पास? हाँ, तो सब मीटर भी सब पुरावा तैयार करो, वापस अपने केस रखते हैं कि भाई सभी को कहीं ना कहीं अभी जगह मिले, बराबर है। After the mass arrests, some men are released, only to find their homes and businesses demolished. अच्छा, तो अंदर कोई है आपका? नहीं, मेरे को लेके गया था, मेरा बीबी को लेके गया था। उसको बोला नहीं कि तेरा आदमी कहाँ है? नहीं, मेरा मतलब मेरे को पहले लेके गया, मेरे को छोड़ाने के लिए मेरी औरत प्रूफ लेके गया तो उसको भी बिठा लिया। सभी टूट गया तो अपने को कहाँ अच्छा लगे। वही तो बीबी बच्चे देखो, मेरे 2 पोती है, सब मैदान में धूप में बैठे हैं, लेकिन हम मुख से बोल रहे हैं कि अंदर से ना हमारे को बहुत तकलीफ हो रहा है। रोना नहीं है, हिम्मत रखो, सबको हिम्मत देना है। नहीं, मेरे को मेरी बात नहीं सोचा, मैं आसाम का हूँ, मेरे घर बारी सब कुछ है, मैं लेके चला जाऊंगा, लेकिन जिसका बस कुछ नहीं है वो कहाँ जाएंगे, बोलो, छोटी छोटी बच्चा है। Without shelter and access to a regular supply of water, conditions in the 40-degree heat are brutal, especially for children. मैं वैसे तो संस्था में हूँ, पर मेरा भी कुछ नहीं चलता, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से, ये लोगों को ऐसे बेघर मत करो। लोगों से पूछो, जब उनका आसियाना वो लोग बसाने में उनको सालों लग जाते, आपको उजाड़ने में 1 घंटा नहीं लगा, आपने पूरा उजाड़ दिया। लोगों ने जैसे तैसे करके बेचारों ने बसाया था। मुझे मालूम है, मैं बस्तियों में काम करती हूँ सभी के साथ, 2002 से जुड़ी हूँ, सभी बस्तियों में जाती हूँ, मैं काम करती हूँ। पर अभी जो हाल देखा ना, उसमें तो हम भी पागल हो गए। The demolished houses are being picked clean by other desperately poor families, with police appearing to do little to prevent the brazen theft. Zora's colleague Beena Jadhav reminds passing police officers about their responsibility to maintain law and order. अब अपना परेशान हाय, चलो भाई, चलो चलो निकलो, चलो निकलो।
वजह से कोई सामान ही नहीं मिल रहा है। हमारा जितना सामान है सब लेके गए, सब जेनो सामान हो ये लो। A seasoned housing rights activist, Bina helped Chandola residents file a number of legal challenges to stop these demolitions and to ask for resettlement. None were successful. आइडियली तो पहले उनको टेम्पररी पुनर्वसन हो जाए, उसके बाद बुलडोज करना है, तो ये सब कुछ नहीं हुआ और बेरहमी से बुलडोज़र घुमा दिया। यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का हनन होता है, आर्टिकल 21 का भी हनन होता है। हम बहुत सालों से लोगों को जो मजबूताई से उनके संघर्ष में सपोर्ट देते हुए जस्टिस का बात कर रहे थे, वो जस्टिस भी होप कहाँ चला गया। Large-scale demolitions affecting the urban poor are not a new phenomenon in India. But previous governments were often compelled by the country's courts to provide basic aid and housing to those rendered homeless. According to human rights groups, under the Hindu majoritarian BJP, these demolitions have increasingly been weaponized against Muslims and other minority groups. There are cases where victims have also been beaten up by police. The use of bulldozers as a punitive state action is widely credited to the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. He's deployed bulldozers across the state, claiming it's punishment for those who encroach on public land. His supporters have even used bulldozers in campaign rallies. न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। Adityanath's policies have emboldened other Hindu far-right fringe figures to use the bulldozer as a tool to attack Muslims. Dinesh Falahari, a self-styled monk, is leading a legal campaign to demolish a historical mosque in the Uttar Pradesh city of Mathura. हम लोग अपने हिंदुओं की आस्था को बचाने के लिए मुसलमानों से लड़ाई लड़ रहे हैं ना न्यायालय में, तो अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए। और ये ज़मीन एक निजी ज़मीन है मंदिर की, इस पर मुस्लिम लोगों ने जो अवैध कब्जा किया था वो हटना चाहिए, उसी में वो लगे हुए हैं। Falahari is also running multiple legal campaigns to ask for the demolition of Muslim shrines, mosques and even entire neighborhoods, claiming they're all illegally built. राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जहाँ सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, ये उसमें शिकायत लिखते हैं, हम उस पर सिग्नेचर करते हैं और अब तक कई मज़ारों पर एक्शन हुआ है। कुछ मज़ारें रह गई हैं, उन पर भी हम वकील साहब के माध्यम से प्रार्थना पत्र लगवाएंगे। हम उसमें याचिका करता रहते हैं और शासन प्रशासन हमारा सहयोग करता है और अब तक दर्जनों मज़ारें प्रशासन के द्वारा तोड़ी गई हैं। Falahari says the BJP government's actions against Muslims have emboldened his legal campaigns. तो पिछली सरकारों में तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कुछ शिकायत भी कर दी। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, तब से अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चल रहा है। Even though his complaints and the government's bulldozer actions disproportionately target Muslims, Falahari rejects claims that they are discriminatory. बिजली का बिल भी नहीं जिसको वो दिखा सके। जो समाज अतिक्रमण करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, जो अतिक्रमण नहीं करेगा उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो आपने देखा होगा जितने भी सरकारी जमीनें सब मुस्लिम समाज ने अवैध कब्जा कर रखे हैं। नजूल की भूमि, सरकारी भूमि, मंदिरों की भूमि, रेलवे की भूमि, सब पे कहीं पे तो रोहिंग्या बसे हुए हैं, कहीं पे मुसलमान बसे हुए हैं। तो जब अवैध कब्जा करेंगे तो सरकार का बुलडोजर तो गरजेगा ही। हिंदू इस मामले में बहुत जागरूक है। हिंदू कभी भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करता है, उसको पता है नियम और कानून। मुस्लिम समाज में ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, वो समझते हैं कि कब्जा कर लिया वही सब कुछ है, लेकिन कब्जे की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आपके पास कागज नहीं है तो उस कब्जे की क्या वैल्यू है। In 2023, Falahari filed a complaint against a predominantly Muslim neighborhood called Nai Basti, a few hundred meters from Mathura's main Krishna temple. He says authorities demolished more than 130 homes belonging to poor Muslims based on his complaint. ये वो जमीन है।
पहले यहाँ पे क्या था मतलब? पहले यहाँ मकान बने थे। अच्छा। ये देंगे इनके बारे में जानकारी, इनसे पूछो आप, इसके बारे में जानकारी ये देंगे। हाँ, क्या पूछ रहे थे? आपको पूछ रहे यहाँ पे पहले क्या स्थिति थी और ये स्थिति इन्होंने बिगाड़ रखी है। स्थिति बढ़िया चल रही है, कोई यहाँ कैसा भी बहुत बढ़िया माहौल है। हिंदू मुसलमान सब प्यार से मोहब्बत से रहते हैं। When we ask Falahari to respond, we find he's disappeared. We eventually locate him back near the entrance of the temple. वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं हमसे। अच्छा, इसलिए हम मान जाते नहीं हैं। But we return to Nai Basti to speak further with Yaqub Shah, the community leader who approached us earlier. ये पैसे वाले, जबकि ये भी जमीन रेलवे की जमीन है, रेलवे नहीं बेचा इसको, और ये जमीन रेलवे की जमीन में ये रह रहे हैं, सबको इनको नहीं तोड़ा। और जबकि हमारे पास सबके पास हमने कागज दिखाए थे, सबको दिखाए, नक्शा दिखाया, खसरा दिखाया, खेबर दिखाया, खतौनी दिखाई, मालिकों के नाम दिए, देने के बावजूद भी हमको उन्होंने बेदखल कर दिया। 2 years after destroying the homes, the government has seemingly done little, either to develop the area or help the people it had displaced. ये मकान पक्के बने हुए थे, सब तोड़ दिए, सब ये सब बिल्लो जैसी भी नहीं तोड़ा है, ये क्यों नहीं तोड़ी? क्यों? इन बातों से ये जाहिर होता है ये मुसलमानों की थी, वो हिंदू की है। इसे हिंदू होने का फायदा उसने उनको उठाया है, लेकिन वो नहीं तोड़ी है, मुसलमान की तोड़ दी। और पैसे वाले हैं वो, जो गरीब हैं। हाँ, ये गरीबों को गरीब छोड़कर, गरीब क्या मुसलमान छोड़कर इनको छोड़ दिया है, यहाँ पड़े रहने दो, इनकी क्या वैल्यू है? ये तो जो कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे पड़े हैं, ऐसे पड़े रहेंगे। बस ये कराई जाए हमारी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं करा है। आज के वक्त में इनने मुसलमानों को तो ये देख लिया कि ये हमारे दोयम दर्जे के लोग हैं और हम पर ये बोझ है, ये इनको निकालो। अब निकल के जाएंगे कहाँ? हमारी पैदाइश यहाँ की, हमारे बाप दादाओं की पैदाइश यहाँ की। जब हम यहाँ जन्म लिया है तो दफन भी यहीं होंगे, यहाँ जाना तो कोई और इसके बाद और तोड़ दें, रहेंगे फिर भी यहीं, जाएंगे कहीं नहीं। The bulldozing of Nai Basti in Mathura was followed by a spate of demolitions in other BJP-ruled states, often after religious violence targeting Muslims. In 2024 alone, more than 7,400 homes were destroyed, leading to more than 41,000 people being displaced. In late 2024, India's Supreme Court was forced to intervene, calling the practice of bulldozer demolitions lawless and unconstitutional. It laid down guidelines for demolitions, requiring the state to give people 15 days' notice before demolishing their homes. But a few months later, even the Supreme Court guidelines were being widely flouted. In Nagpur, a city in BJP-ruled Maharashtra, religious riots broke out in March 2025. A local Muslim politician, Fahim Khan, was accused of instigating the riots. He was arrested and his parents' home was demolished. Advocate Ashwin Ingole is fighting to help his father, Shamim, get compensation. मुआवजे के लिए हाईकोर्ट में बोला है कि उसमें 10 लाख जो है वो जमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक हम बोल रहे हैं कि उसमें 10 लाख पहले जमा करो। पूरी 40 साल की मेहनत मैंने तिनका करके 10 साल में ये मकान बनाया मैंने। एक साथ नहीं बना वो, कभी पिलर खड़ा कर दिए, कभी दीवार खड़ा कर दिए। इस तरीके से मैंने अपनी मेहनत का बनाया हुआ, किसी के कैसा नहीं लगाएगा। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि मेरा घर बन जाए, मेरा परिवार सब एक जगह रह जाए, बस यही होना हमको, और कुछ नहीं हो। अंदर जाके बात कर लेते हैं। The destruction of the family's house is an example of a different kind of bulldozer demolition. Instead of targeting entire Muslim-majority neighborhoods, individuals accused of crimes often face the demolition of their family homes, even before they are convicted. Fahim's brother Naeem Khan also lived in the house with his wife and children. क्योंकि उन्होंने मतलब किसी को कोई सुनाई नहीं किया, मैंने बताया भी मतलब इससे फ़हीम का कोई लेना देना नहीं है, ये ना फ़हीम के नाम पे ना मेरे नाम पे, किसी के नाम पे नहीं है, बोला ये है मम्मी के नाम पे। तो बोले नहीं, बोले आपको बोले खाली करना पड़ेगा, आप नहीं खाली करोगे तो बोले वो सामान समेत
सबका। In this case, local authorities were forced to admit they violated the Supreme Court guidelines. ऐसी कार्रवाई फिर न हो। ये जो डिमोलिशन की जो कार्रवाई होती है बुलडोजर जस्टिस के तहत, ये सरासर गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन इशू की है कि ये डिमोलिशन एक आरोपी के परिवार को पूरा पनिश करना है, ये कोई भी कानून में लिखा नहीं है। जो कार्रवाई कर रहे हैं ये संविधान के खिलाफ और मूलभूत अधिकार जो है हर नागरिक का अपना एक मकान का, वो उसका भी उल्लंघन हो रहा है। In July 2025, Ingole managed to get bail for Shamim's son Fahim. The appeal for compensation related to the house is ongoing. Back in Ahmedabad, activists Zora and Beena are also pinning their hopes on India's legal system. They're applying for alternate housing and aid for those affected in the Chandola Lake demolitions. कोर्ट के मुताबिक उनको 173 को घर देना था। चंडूला वाले? हाँ, चंडोला वाले। तो जो गिराने वाले हो तो आप पहले उनको पक्के घर में शिफ्ट करो, बाद में उसके बाद सबका तो एक एप्लीकेशन आज करना है, 4 बजे के बाद वो इन्वर्ट करेंगे। Ahmedabad is on alert for the possibility of further, larger waves of demolitions. Muslim men across the city continue to be picked up for questioning. ना गणेश नगर का फोटो मुझे थोड़ा खींच के भेजो ना, हाँ थोड़ा। ये जो बहुत सारी पुलिस है ना, वो गिराने तो देना नहीं है, बुलडोजर तो नहीं आया ना, हाँ ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओके कोई नहीं, सारू फोन करूँ है ना, चलो ओके बाय 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 ओके बाय। पुलिस आई थी गणेश नगर में, बहुत सारे पुलिस है, वो बोल रहे हैं कि शायद वो गिराने के लिए आएंगे। बुलडोजर नहीं आया है, पर आमिर और साइन और साबिर को बहुत कल मारा है और 2 बार वो बेभान हो गए, बेहोश हो गए थे। तो बोले जैसे ही वो रिलीज करते हैं उनको इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। Zora, who has 2 sons, says life has become perilous for Muslims in India. 10 साल से बहुत ही बुरी हालत है कि कहीं पे जाना भी डर लगता है। हमारे बच्चे, मेरे खुद के 2 बेटे, अगर वो बीने बोला कहीं चले जाते ना तो मैं फ़ोन हाथ से नहीं रखती जब तक उसके वो घर नहीं आता ना, मैं फ़ोन नीचे, क्योंकि बहुत बुरे बुरे हादसे हो रहे हैं। मुस्लिम निकला, पुलिस स्टेशन में भी यही होता है, तुम बांग्लादेशी के साथ आए हो, तुमको भी अंदर कर देंगे। On the 20th of May 2025, Zora and Beena's worst fears came true. The bulldozers returned to Chandola Lake for a second, much larger wave of demolitions. यहाँ पे 8000 फैमिली है, फैमिली बोलते हैं, और मुस्लिम फैमिली है, हिंदू फैमिली है। आप सिर्फ 5 गिन लो तो देखो 8 पंचा 40, इतने परिवार, मतलब इतने पीपल है ना, बच्चों, बहने, बच्चे और घर वाले सब इधर ही बैठे हैं। अभी चल रहा है। तो मेरा कहना तो यही है कि आप बुलडोजर को बहुत अच्छा मानते हो, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि किसी बड़े लोग के घर पे बुलडोजर घुमा के बताओ तो मैं मानूं कि तुम्हारा बुलडोजर अच्छा है। गरीबों पे तो हर कोई करता है, अमीरों पे करके दिखाओ जो गैर कायदेसर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है जो दुनिया का प्रदूषण फैलाते हैं, नदी में गंदा पानी, तालाब में गंदा पानी, उनका सारा पानी उसमें जाता है, तब वहाँ पे बुलडोजर चला के बताओ। नहीं, आज दिन तक नहीं देखा, आज दिन तक इतना बड़ा डिमोलेशन मैंने नहीं देखा, पर इनके लिए कुछ नहीं करा, वैसे ही निकाल दिया सभी को, निकल जाओ आप। रोड पे बैठे हैं बच्चे को लेके, बहुत बुरा। सरकार जैसे क्या मालूम अंधी बेरी हो गई है, कुछ सुनना ही नहीं चाहती है किसी का। In total, 12,500 structures were demolished across the 2 drives. Authorities say they plan to build skyscrapers and a lakefront park here.
After complaints by activists, the government said they would resettle long-term residents of Chandola if the families first pay $3,500, a sum way beyond reach for most of the people here.